Hello everyone, welcome back to our channel. We are discussing 8th class geography book, first chapter, resources. So let's quickly revise what we have studied in last class. We have studied about resources. Now what is a resource? Okay, so anything that we can be used to satisfy our needs is called a resource. To what extent we use that object in our daily life, that is it's called importance of that object. For example, water, electricity. So what makes an object a resource is called its utility, that how more we use that object, how more we use that resource. Then we talked about a value. So for some object or resource become economical valuable with time. So here time and technology plays an important role. These two are important factors that can change a substance into a resource. Then we are discussed about types of resources. Okay, if you want more detail, you can watch our last video on this channel. उसमें आपको और डिटेल मिल जाएगा कि मैंने उस लेक्चर में ज़्यादा अच्छे से समझाया है. जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ. Then we talked about types of resources. So there are 3 types of resources that we have divided: natural resources, human made, and human resources. Natural resources are basically those resources that we drawn from our nature directly. For example, air, water, they are gift from nature to us. Okay, so we have further divided natural resources into 2: renewable resources and non-renewable resources. Renewable, नाम से ही the clarity है, renewable, which get renewed automatically. So we have unlimited stock of it. For example, water. We have unlimited stock of water, right? But still we need to worry because it get polluted. So we need to so हमें उसे बहुत देख कर मतलब यूज़ करना है. Okay, after that next topic is non-renewable resources. We have a limited stock of these resources, and once these resources get finished, it takes thousands of years to get renewed, right? So we need non-renewable resources. ठीक है, इनको renew करना मुश्किल है, non-renewable. Okay, let's move further. In last lecture we also talked about human made resources, right? So what are human made resources? In which we change natural substance into a form of resource in which we can use it, that we are changing its original form to into that form जिसमें हम उसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएँ. For example, iron ore. आपकी बुक में भी यही एग्जाम्पल है, आयरन ओर. we change it into iron, and then from that iron we can make building, vehicles, machine, right? Bridges, roads, machinery, vehicles. ठीक है, so these are called human made resource. Here natural substance is what? Iron ore. We change it into iron, and from that iron we made buildings, vehicles, right? So here we change the form of iron ore into that form in which we want to use it, right? So please underline this too in your book. Okay, so let's move forward and talk about human made resources. Okay, sorry, we talk about human resource. Okay, so human resource से पहले ये एक पिक्चर है. Let's discuss it first. Crops renewed due to drought. Can I find a solution? So a scientist is basically reading a newspaper, and in that newspaper she is reading an article कि क्रॉप्स जो हैं ख़राब हो गए हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर सूखा पड़ गया है. तो क्या वो उस चीज़ का सल्यूशन ढूंढ सकती है? इन सेकेंड पिक्चर she finds a solution, she says yes, I can find a solution. And in third picture you can see that she is talking to farmers that yes, thanks to knowledge, education, skill, that we can find a solution to this problem.
तो किसने सॉल्यूशन ढूंढा? वी एज अ ह्यूमन बीइंग, वी एज अ इंडिविजुअल, हमने इसका सॉल्यूशन ढूंढा। किस वजह, किसकी हेल्प से? नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी. सो वी एज अ पीपल, वी एज एन इंडिविजुअल, राइट, here human resources. So we as the people, we as an individual are resources कि we have that skill कि हम किसी भी चीज़ को अपने अकॉर्डिंगली चेंज करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं. नेचर ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं, अब हम उसको एज इट इज़ तो नहीं यूज़ कर सकते ना, तो वी कैन चेंज इट in the best form we want to use it, and through that we can create more resources. ठीक है. So with the help of knowledge, skill and next page पर technology, right? So that is why human being is a special resource. Sorry. We have knowledge. हम बचपन से पढ़ाई करते हैं, फिर हम कोई नॉलेज गेन करते हैं अपने पास. उस नॉलेज से हमारे अंदर कोई स्किल आता है बेसिकली. ठीक है. आपके घर सपोज एक इलेक्ट्रिशियन आता है, और वो घर की, उसके पास क्या नॉलेज है? उसके पास नॉलेज है अबाउट वायरिंग, है ना, कि वो फैन, ट्यूबलाइट ख़राब हो गई तो वो उसको चेंज कर देता है. कैसे? उसके पास वो स्किल है. वो स्किल कहाँ से आया? नॉलेज से आया. ठीक है. एंड टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उसने लाइट या फैन को ऑन कर दिया, राइट. सो नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी, ये ह्यूमन बीइंग के पास एक पावर है. आई डोंट थिंक सो कि और किसी लिविंग बीइंग के पास ये पावर है, राइट. और किसी लिविंग बीइंग के पास ये पावर है एज कम्पेयर टू प्लांट्स, एनिमल्स, दे आर ऑल्सो अ लिविंग बीइंग, राइट. तो उनके पास तो ये पावर नहीं है, but human being have. And supplementary to that, education and health help in making the quality of people's skill to create more resources. That knowledge, skill and technology, वो knowledge कहाँ से आया? हमने लाइफ टाइम एजुकेशन अचीव करी, उससे आया. अगर हमारे पास एजुकेशन है, स्किल है, टेक्नोलॉजी है, पर नेक्स्ट इज हेल्थ. अगर हमारी हेल्थ ही नहीं ठीक होगी तो क्या हम न्यू रिसोर्सेज बना पाएंगे? क्या हम कोई और काम कर पाएंगे अपनी लाइफ में? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. सो एजुकेशन एंड हेल्थ आर टू सप्लीमेंट्री थिंग्स दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, राइट. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्विंग रिसोर्सेस. Okay, so what do you mean by conserving resources? आजकल हर जगह लॉकडाउन चल रहा है, आप सब अपने घर में हो, राइट. तो हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है घर पर. हम उस स्टॉक को बहुत केयरफुली यूज़ करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल वो चीज़ मार्केट में मिलेगी या नहीं. अगर मिलेगी तो कितने टाइम बाद मिलेगी, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैगी, आप घर में 4 पैकेट मैगी लाए, आपको नहीं पता कल ये मार्केट में मिलेगी या नहीं, तो आप उस 4 पैकेट मैगी को बहुत केयरफुली यूज़ कर रहे हो कि नहीं आज मन नहीं, हम इसे कल खा लेंगे. इतने में वो क्या है, मार्केट में और मे बी पीछे से स्टॉक आ जाए, तो आप इस टाइम में उसको रिन्यू करने का अपने आप मौका दे रहे हो कि वो और स्टॉक आ जाए. और जितना आपके पास है आप उसको रिन्यू करने का मौका दे रहे हो, उसको केयरफुली यूज़ कर रहे हो स्टॉक को जो आपके पास है. सो हियर दिस इज व्हाट रिसोर्स कंजर्वेशन इज. यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, जो मैंने अभी आपको बताया. ठीक है. सो यही हम बेसिकली अपनी ज्योग्राफी में भी अप्लाई करते हैं कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हम उसको बहुत केयरफुली यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोलियम, कोल, ताकि वो जल्दी ख़त्म ना हो जाए. और इतने टाइम में जब तक हम उसे यूज़ कर रहे हैं वो पीछे रिन्यू होते जा रहे हैं, राइट. बिकॉज उनको रिन्यू होने में कितना टाइम चाहिए? 1000 of years. ठीक है. शायद तब तक हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ जाए.
ओके, लेट्स विथ कंजर्विंग रिसोर्सेज एक और कॉन्सेप्ट आता है आपकी बुक में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज carefully utilizing resources so that besides meeting the requirements of the present also takes care of the future generation. तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज़ करते हैं ताकि सिर्फ हम ही वो रिसोर्सेज ना यूज़ कर सके, हमारी आने वाली जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। ठीक है, दिस इज़ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। ओके, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक जिसे हम कह सकते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोट है जो आप अपने एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, जो आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में और बेटर हेल्प करेगा। दैट इज़, वी हैव नॉट इनहेरिट दीज रिसोर्सेज फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन। ओके, सो ये जो रिसोर्सेज है ये हमें अपने पेरेंट्स से, यानी हमारे जो पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन्होंने विरासत में नहीं दिए हैं। हमने ये रिसोर्सेज हमारी फ्यूचर जनरेशन से, जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, हमने उनसे ये उधार पर लिए हैं। और हमेशा बोरो की हुई चीज़ें हम उनको वापस देते हैं ना, वैसे का वैसे। तो डू यू थिंक सो कि हम जिस हिसाब से इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, क्या हम उन्हें उस तरह से उनको वापस दे पाएंगे? ठीक है, आई डोंट थिंक सो। सो प्लीज़ यूज़ दीज रिसोर्सेज केयरफुली। So as an individual, every person can contribute. Now how? First is reducing consumption. लाइट्स ऑफ करना। आप एक कमरे में हैं तो दूसरे रूम की लाइट्स ऑन है तो प्लीज़ स्विच ऑफ द लाइट्स। यू आर रिड्यूसिंग कंजम्पशन। टैप वाटर जब आपको नहीं यूज़, प्लीज़ डोंट वेस्ट दैट टैप वाटर। जब हम ब्रश करते हैं मॉर्निंग में, यू नो आप कितना पानी वेस्ट करते हो, हमें पता भी नहीं लगता, और हम कितना पानी वेस्ट कर देते। तो एटलीस्ट जब आप टैप वाटर नहीं यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ क्लोज दैट टैप। आजकल हम लॉकडाउन के पीरियड में हम हाथ धोते हैं तो हम अपने हाथ 20 सेकेंड्स तक रब करते हैं, एंड वो 20 सेकेंड्स तक इफ़ यू नोटिस, क्या वो टैप ऑन रहता है? आई थिंक ऑन रहता है ना। तो प्लीज़ जब आप रब कर रहे हो सोप अपने हाथों में, प्लीज़ स्विच ऑफ दैट टैप। ओके, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। हाउ यू कैन रिसाइकिल थिंग्स एंड रीयूजिंग? पेपर, आपने पेपर को यूज़ कर लिया, नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली थ्रो दैट पेपर। हम कॉपी नोटबुक में, क्लासरूम में कितने पेपर वेस्ट करते हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग, बट इज़ इट राइट? नो। जब आपने कोई पेपर यूज़ कर लिया है तो सिंपली यू कैन रीयूज़ दैट पेपर। यू कैन नॉट recycle it at home, but yes, you can reuse at home. How? Cut that paper into pieces, long pieces, and you can use it as a bookmark, है ना? That's important thing. क्यों इतने महंगे बुक मार्क्स मार्केट से लाना? आपके रिसोर्सेज सेव हो रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यू एज एन इंडिविजुअल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, वाटर, यू कैन रिसाइकिल वाटर, रीयूज दैट वाटर। ठीक है, तो अल्टीमेटली इफ एवरी इंडिविजुअल ट्राई टू सेव दिस रिसोर्सेज, सो you can make it a difference. Fine. Okay, let's move forward towards last page. So there are some principles of sustainable development. First is respect and care for all the forms of life. That you have to respect and care for all the living beings on earth. Not only living beings, non-living things too. For example, plants, animals. ठीक है, और भी जो नॉन लिविंग थिंग्स आप अपने आसपास देखते हो, क्यों वो भी किसी रिसोर्स से बनी है, क्यों उनको वेस्ट करना? राइट। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। आप अपनी लाइफ, जैसे हम कैसे आज अभी तक हम कितनी चीज़ें वेस्ट कर रहे थे,
But no, अब you have that knowledge, you have that, you know about it. So please try to don't waste it. You will improve the quality of your life. Okay? Conserve the earth's vitality and diversity. जो आपके अर्थ पे इतनी डाइवर्सिटी है, प्लांट्स, एनिमल्स की, प्लीज़ ट्राई टू सेव इट. ठीक है? एंड नाउ हाउ यू कैन सेव इट? दूसरों को बताओ इसके बारे में कि अपने नेबरहुड में, अपने पेरेंट्स को, कि हमें उनको सेव करना है. ठीक है? हमें उनको हंट नहीं करना है, वो प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने हैं. ठीक है? जब आप प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करोगे, लेदर अच्छा लगता है, लेकिन हम उनका यूज़ कम कर सकते हैं. ख़त्म नहीं कर सकते हम अपनी लाइफ से, लेकिन यूज़ कम तो कर सकते हैं. ओके, मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ हाउ यू कैन मिनिमाइज द रिसोर्स ऑफ डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? उसको थोड़ा कम यूज़ करके, बाय सेविंग इट. जैसे हमने टैप वाटर की बात की. ठीक है? चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट. चेंज योर एटीट्यूड. आप अब तक एनवायरनमेंट को कितना हार्म करते थे, राइट? बट अब आपको इसके बारे में पता है, तो अब आप नहीं करोगे. आई होप सो. अनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर ऑफ देयर ओन एनवायरनमेंट. अपने आसपास सबको बताओ कि कैसे वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. वाटर, एयर, ये सब आपके एनवायरनमेंट का पार्ट है. तो इट्स योर ड्यूटी एज एन इंडिविजुअल टू सेव इट. अगर आप इसके बारे में दूसरों को बताते हो, चाहे एक ही किसी को बताओ, यू आर मेकिंग अ डिफरेंस, राइट? ओके. So, as a member of this planet Earth, it's your duty to preserve the life of the people, to save this nature. ठीक है? So it's your duty. Thank you. I hope you all like this lecture. Please like this video. Please subscribe our channel and press the bell icon. And for more doubts, you can contact to us on our Telegram channel. Thank you.